بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب، اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 190۔ میں نے دل ہی دل میں کہا خدا نہ کرے کہ سونیا پر ایسا وقت آئے۔ ویسے اس بات کا مجھے بھی یقین تھا کہ وہ فولادی حسینہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں بنجامن کو وہیں چھوڑ کر اس زخمی نوجوان کو لے کر لانچ کے نچلے حصے میں آ گیا۔ وہاں میں نے اس سے کہا، تم اپنی وفاداری کا ثبوت دے چکے ہو، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ لانچ سے اتر کر برتھ پر جاؤ اور اس سے اسٹین گن، کارتوسوں کی پیٹی اور ریوالور نکال کر گاڑی سے لے آؤ۔ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ خوراک اور اسلحہ ہونا چاہیے۔ وہ لانچ سے چھلانگ لگا کر برتھ پر پہنچ گیا۔ اس نے ضرورت ہی نہ سمجھی، اس طرح اس نے ردہ کر لیا اور موقع پا کر بھاگنا چاہتا تھا۔ میرا قیاس درست نکلا۔ میں نے اسلحہ نکالنے کے لیے دروازہ کھول کر اندر گیا، پھر فوراً کار سٹارٹ کرنے لگا۔ میں نے اسٹین گن اٹھا کر فائرنگ کر دی۔ پہیے دھماکوں سے برسٹ ہو گئے۔ وہ اسٹین گن لے کر کار سے نیچے اترا اور کار کی پچھلی طرف چلا گیا۔ میں نے چیخ کر کہا، بیٹے مجھے احمق نہ سمجھو، خود ہی تم سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ جو اپن کار کے پیچھے سے ایک ہاتھ اٹھا کر ریوالور سے فائر کرنا چاہتا تھا کہ میری اسٹین گن سے تڑا تڑ گولیاں برسنے لگی۔ اس کا ہاتھ چھلنی ہو گیا، ریوالور چھوٹ کر دور جا پڑا۔ اس کی چیخ دور تک سرسراتی ہوئی چلی گئی۔ پھر وہ کار کے پیچھے سے اٹھ کر ایک طرف بھاگنے لگا۔ اسی وقت عرشے پر سے گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ یکبارگی اچھل کر زمین پر گرا، پھر تھوڑی دیر پر تڑپ کر سرد ہو گیا۔ پھر عرشے سے بنجامن کی آواز سنائی دی، کامان مائی سن۔ میں نے اسے ختم کر دیا۔ میں وہاں سے زینہ طے کر کے اوپر پہنچ گیا۔ بنجامن کے پاس اسٹین گن دیکھ کر میں نے پوچھا، تمہیں یہ اسٹین گن کہاں سے مل گئی؟ اس نے دوسرے کیبن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کیبن میں اسٹین گن، ریوالور، کارتوسوں کی پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ سرپن ڈبوں میں کھانے کا کافی سامان موجود ہے۔ برما کی طرف ہمیں روانہ ہونا چاہیے۔ میں نیچے جا کر لانچ کے وہیل کو سنبھالتا ہوں، سیل سے دور ہونے تک تم عرشے پر کھڑے رہو۔ میں نے اس کی تائید کی۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ میں اور فوراً سمندر کی جانب دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں بھی اسی جانب ایک چھوٹا سا بحری جہاز ہماری طرف چلا آ رہا تھا۔ ہم نے اسے دیکھنے لگے۔ ہم دونوں کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ یہ کس کا جہاز ہے، اس بندرگاہ کی طرف کس مقصد سے آ رہا ہے۔ میں نے خدشہ ظاہر کیا کہ سپر ماسٹر فوجی امداد لے کر واپس آ رہا ہے۔ بنجامن نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہو اتنے چھوٹے سے جہاز میں فوج نہیں ہو سکتی۔ ماسٹر بری طرح شکست کھا کر گیا ہے۔ وہ جب بھی آئے گا بے شمار فوج کے ساتھ آئے گا۔ پھر یہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ یہ ہمیں حفاظتی انتظامات کر لینا چاہیے۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے کیبن میں گئے۔ ہمارے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھی۔ ہم نے مزید 2 ریوالور لوڈ کر کے اپنی جیبوں میں رکھ لیے، ہاتھوں تھیلوں میں گرنیڈ بھر لیے۔ بنجامن ایک تھیلا لے کر نیچے چلا گیا۔ میں عرشے پر کھڑا ہو کر کبھی برف کی طرف اور کبھی سمندر کی طرف جانے لگا۔ جہاز تیز سے قریب آ رہا تھا۔ جب وہ 200 گز کے فاصلے پر آیا تو مجھے اسی جزیرے کے مسلح جوان نظر آئے۔ میں نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ وہ ایرج کے ساتھی تھے۔ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ وہ واپس آ رہے تھے۔ کیا ان کے ساتھ سونیا بھی تھی؟ ذہن میں یہ سوال ابھرتے میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں کیبن کی آڑ میں کھڑے ہو کر لمحہ بلمحہ انہیں قریب آتے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 50 گز کے فاصلے پر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ جب وہ میری مقبوضہ لانچ پر
तो वे एक सफेद कपड़े को सुलह की चड्डी के तौर पर लहराते हुए मेरा नाम पुकारने लगे। फरहाद, अगर तुम लॉन्च में मौजूद हो तो सामने आ जाओ। एरिज तुम्हारी सोनिया को वापस करने आया है। मेरे दिल की धड़कनें खुशी से पागल हो गई। मेरी सोनिया वापस मिलने वाली थी, लेकिन इससे पहले मैं कैबिन की आड़ से निकलकर उनके सामने जाता, लॉन्च के निचले हिस्से से मुजामन ने चीख कर कहा, फरहाद, इनके फ्रेम में ना आना, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे अपनी जिंदगी दांव पर लगाने दो। मैं तुम्हारा नुमाइंदा बनकर इस जहाज पर जाऊंगा, एरिज से बात करूंगा। अब वो लोग जहाज को बरस से लगा रहे थे और लंगर डाल रहे थे। एरिज के एक साथी ने जवाबन कहा, मिस्टर मुजामन, हमें मंजूर है, तुम यहाँ आओ और एरिज से बातें करो और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। फिर मुझे नीचे से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे मुजामन बर्थ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगा रहा हो। मुजामन के समझाने से बात समझ में आ गई थी, वरना मैं तो सोनिया की वापसी के ख्याल से ही दीवाना हो गया था। मुझे इसके असूल के सिवा आसपास कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। अब मैं संजीदगी से सोच रहा था कि एज क्यों सुलह करने के लिए वापस आया है, और अगर आ ही गया है तो फिर खुद सामने क्यों नहीं आ रहा। वो सोनिया को लेकर दूर समंदर में चला गया था। बर्मा या हांगकांग जाने का फैसला कर चुका था। अब वापसी की कोई माकूल वजह समझ में नहीं आ रही थी, जबकि वापसी में खतरा ही खतरा था। सुपर मास्टर की यहाँ किसी भी वक्त इंतकाम लेने के लिए पहुंच सकता था। इस वक्त ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मुजामन को देखा, वो जहाज की सीढ़ियां चढ़ने के बाद कैबिन की तरफ जा रहा था। तमाम मुसल्लह नौजवान इस्तकबाली अंदाज में अलर्ट खड़े हुए थे। इस जहाज में कितने ही कैबिन थे। एक मुसल्लह गार्ड ने मुजामन को एक दरवाजे के सामने पहुंचा दिया। मैं अपनी लॉन्च में जहाँ खड़ा हुआ था वहां से वो दरवाज़ा नजर आ रहा था। मुजामन वहां खड़ा हुआ था मगर दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद समझ में आया कि वो बंद दरवाजे के पीछे किससे बात कर रहा है। इतनी दूर से उसके लबोल हिलते हुए नजर नहीं आए, लेकिन कभी इनकार में और कभी इकरार में सर हिलता हुआ नजर आ रहा था। फिर मुजामन ने एरिज के खास आदमी को आवाज़ देकर वहां बुलाया। उसके 4 काबिल इत्मीनान साथी दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। अब वो बंद दरवाजे से होने वाली बातें सुन रहे थे। इनके अंदाज से पता चल रहा था कि वो अपने बास का कोई हुक्म सुन रहे हैं। फिर वो चारों जहाज में इधर उधर होकर अपने साथियों को हुक्म देने लगे, साथियों, अपने हथियार इस जहाज में छोड़कर बर्थ पर चले जाओ, ये हमारे बास का हुक्म है। ये हुक्म सुनते ही सब लोग परेशान हो गए। कुछ लोग हथियार फेंक कर, लेकिन थोड़ी देर की बहस के बाद इन्हें जाना पड़ा। इनके चारों काबिल इत्मीनान साथी भी वहां से चले गए। जहाज खाली हो गया। मुजामन ने जहाज के अर्शे पर फिर तमाम कैबिनों में, उसके बाद जहाज के निचले हिस्से में अच्छी तरह तलाशी ली। जब उसे इत्मीनान हो गया कि अब वहां कोई एरिज का साथी नहीं है, तो उसने मुझे आवाज़ दी, हेलो माई सन, अब तुम यहाँ आ सकते हो, कोई खतरा नहीं है। मैंने बर्थ की जानब देखा। एरिज के तमाम नहते साथी बर्थ से दूर जाकर फौजियों की तरह मुख्तलिफ कतारों में खड़े हो गए थे। मैंने स्टेन गन संभाल ली, ग्रेनेड का थैला उठाया, फिर लॉन्च से उतरकर बर्थ पर आ गया। वो लोग मुझसे तकरीबन 20 गज के फासले पर खड़े हुए थे। ज्यादा फासला ना था। वो चाहते तो नहते होने के बावजूद चारों तरफ से मुझ पर पिल पड़ते। फिर स्टेन गन मुझ से कुछ लोग जख्मी होते, कुछ हलाक होते, मगर बाकी बचने वाले मुझे अपना कैदी बना सकते थे। मैं बड़े ही मुताहत अंदाज में चलता हुआ जहाज के जीने तक पहुंचा। बड़ी हैरानी की बात थी कि इनमें से किसी ने भी मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। मैं जहाज पर आकर ऊपर अर्शे में पहुंचा। मुजामन हाथ में स्टेन गन लिए बर्थ की तरफ देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि हमारी जरा सी गफलत से फायदा उठाकर एरिज के साथी फिर जहाज पर पहुंच जाए। इसने मुझे देखते ही कहा, मैं जहाज के जीने की निगरानी कर रहा हूँ, अगर वो लोग जीने के करीब आएंगे तो मैं फायरिंग शुरू कर दूंगा। तुम कैबिन नंबर 1 के दरवाजे पर जाकर सोनिया से कह दो कि अब वो बाहर आ जाए। मैंने कैबिन नंबर 1 के दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी जान, बाहर आ जाओ। मेरी आवाज़ सुनते ही वो एक झटके से दरवाज़ा खोल कर आई और एकदम से वाहियाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी दूर जाने वाले अचानक इतनी जल्दी इतने करीब आ जाते हैं। उसे चूमने के दौरान मैंने खुले हुए दरवाजे से कैबिन की तरफ देखा। कैबिन के फर्श पर एरिज जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। मैंने सोनिया के साथ अंदर आते हुए पूछा, ये खुद को फाते आजम समझता था, अब बेचारा चारों शाने चित कैसे हो गया। सोनिया ने उसे ठोकर मारते हुए कहा,
जिस कैबिन में बंद कर दिया था, मुझे बंद करने से पहले मुझसे मेरे हथियार छीन लिए थे। इसके साथियों ने मेरे लिबास के अंदर तलाशी नहीं ली थी। इसने अपने साथियों को इसलिए मना कर दिया था कि ये गुलफाम बनकर मेरे लिबास तक पहुंचना चाहता था। जहाज जब इस बंदरगाह को छोड़कर समंदर में पहुंच गया तो ये शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ मेरे पास आया। फिर दरवाजे को बंद करने के बाद कहने लगा, तुम्हारा फराद मेरी रमना से खेल चुका है। मैं चाहता हूँ तू उसे कत्ल कर देता, लेकिन मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। मेरे साथी उसके खाने में ऐसी दुआ मिलाकर दिया करेंगे जो उसे हमेशा बीमार और कमज़ोर बनाती रहेगी, और मैं तुम्हारी जवानी से खेलता रहूँगा। वो तुम्हारे लिए तड़प तड़प कर मरता रहेगा। ये कहने के बाद वो मुझे तनवाला समझकर मेरी तरफ बढ़ा। इसकी अदम मौजूदगी में मैं आहनी नाखनों से लैस हो चुकी थी। मैंने इस पर हमला किया तो उसके होश उड़ गया। उसका सारा नशा हिरन हो गया। वो दरवाजे की तरफ भागने लगा। मैंने उसकी गर्दन से गोश्त नोच लिया। वो लड़खड़ा कर फर्श पर औंधा मुंह गिर गया। अंदर हंगामे की आवाज़ सुनकर बाहर उसके साथियों ने आहनी पंजे इसके चेहरे पर रखते हुए मैंने कहा कि अपने साथियों से कहो दरवाज़ा न तोड़े, वरना मेरी जान से हाथ धो बैठेंगे। मेरे आहनी नाखन उसके चेहरे पर इस तरह फैले हुए थे कि जरा सी हरकत में उसकी धज्जियां उड़ सकती थी। उसने घबरा कर अपने साथियों से कहा, ठहर जाओ, दरवाज़ा न तोड़ो, मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। उसकी बातें सुनकर बाहर का शोर एकदम बंद हो गया। मैंने कहा अपने साथियों से कहो कि इस जहाज को वापस बंदरगाह ले जाए। वो हिचकिचाने लगा। मैंने उसके चेहरे पर नाखूनों का दबाव डाला तो फौरन कांपते हुए बोला, अपने साथियों से कहा, मेरे जाबाज साथियों, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो जहाज को वापस बंदरगाह की तरफ मोड़ लो। बाहर से उसके साथी की आवाज़ आई। वो धमकी दे रहा था, सोनी, अगर तुम जिंदगी चाहती हो तो चुपचाप दरवाज़ा खोल दो, हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार देंगे। मैंने जवाब दिया, मुझे तो बहरहाल मरना ही है। मेरी इज्जत लूटकर मारना चाहता था तुम्हारा बॉस, उससे बड़ी मौत मैं उसे दूंगी। अब मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अपने लीडर को जिंदा रखने की कोशिश करो। वो सभी एरिज की ज़िंदगी चाहते थे। जब इनकी धमकियों का मुझ पर कोई असर न हुआ तो मजबूरन जहाज को यहाँ ले आए और मुझे ये धमकी दी कि अगर मैंने एरिज को ना छोड़ा तो वो मेरे डैडी को कत्ल कर देंगे। मैंने इनसे कहा, मुझे मालूम हो चुका है कि फराद को किस तरह तुमने मुर्दों से बदतर बनाने की कोशिश करोगे, और मैं इनके साथ भी ऐसा ही सलूक करूँगी। हमें तो किसी न किसी तरह मरना ही है, तो मैं जजीरे में पहुंचकर फराद के साथ क्यों ना मरूं और एज को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब उन्होंने वादा किया कि वो तुम्हें और डैडी को हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ इस शर्त पर मेरे हर हुक्म की तामील करेंगे कि एरज इन्हें जिंदा दिया जाए। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम अपना फैसला एरज को सुनाओगे, उसे लुटा दिया जाए या नहीं। मैं तमाम बातें सुनने के बाद इस बात में सर हिलाकर कहा, तुम भी अपना वादा पूरा करो, हम एरज को उनके हवाले कर देंगे। इससे पहले हमें अपने मुतल्लिक अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि अब हम करेंगे क्या और कहाँ जाएंगे।